we'd seen in modern cricket and captaining Pakistan proudly. Shoaib Malik, good afternoon, Shoaib. Assalamu alaikum. Good morning and assalamu alaikum, everyone. With that, I've got Mr. Dependable, the man who led Pakistan proudly as the most successful Test captain in Pakistan's Test cricket history, Ms. Pavilion. Assalamu alaikum and good afternoon, Ms. Wa alaikum assalam. Thank you. With that, I've got another former captain of Pakistan, the man who kept the wickets when the two Ws operated from both ends, and one of the best runners between the wickets in his day and age, also referred to as a man of crisis, the silver fox of the Pavilion, Moin Khan. Assalamu alaikum and good afternoon. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum, everyone. And the cricket royalty himself, the Sultan of Swing, the undisputed all-rounder of all all-rounders. Ladies and gentlemen, I proudly present to you none other than Wasim Akram. Assalamu alaikum and good afternoon. Hola. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum, everyone. Goodie. Muchas gracias. Muchas gracias. The day has started for us on a very good note. We were successful in having a wonderful breakfast. Thank you so much, Wasim, for ordering everything for us. I didn't. You did last night. But anyway, so the pies and the cholas and the kulchas are down. And we are happy with that, right? Yes, absolutely. All right, we are all set for the game today. It's Pakistan versus Afghanistan that's coming up. ये मैच आइडेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं. आज आप लोगों को इस खेल की तरफ लेकर जाएंगे. पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान लाइव चेन्नई से 1:30 बजे मैच जो है वो शुरू होगा. बड़ा मुकाबला है. दोनों टीमों को मैच जो है वो पॉइंट्स टेबल के ऊपर अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए मैच जीतना जरूरी है. बट बिफोर वी गेट गोइंग ऑन दिस गेम, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट. एंड yesterday it was a fantastic game of cricket in Dharamshala. It was India versus न्यूजीलैंड. दोनों टेबल टॉपर्स थे, मगर कल इंडिया ने बेहतरीन बैटिंग करके जो है वो बेसिकली न्यूजीलैंड, लुक एट दैट स्कोर कार्ड, दैट टेल्स द होल स्टोरी. Mitchell there with that beautiful, fantastic century, 130. Ravindra contributing with 75. But Shami ki figures dekhiye, 5 for 54, just outstanding. He came in there and he was, fantastic for India. That entire Indian bowling unit is looking more and more unplayable with every game as we move forward in this World Cup. In reply, it was King Kohli who is the master chaser and he sets up the chase so well. But not to forget, it's the captain Rohit Sharma who basically sets up the tone for the team's innings. The way he does it. And then, that's how New Zealand were defeated. Perhaps 50 runs short on that total, and it could have been a different story, but India won that convincingly, 4 wickets. And with that, आइए नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर. आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं पॉइंट्स टेबल. ये रहा पॉइंट्स टेबल. इस वक्त सूरत हाल पॉइंट्स टेबल पे ये है कि इंडिया is unstoppable, and right now they're right on top of this points table with 10 points. Following them is New Zealand with 8 points, then South Africa, then Australia, and then Pakistan on the 5th place. Now, mind you, we're halfway through the tournament. अभी भी ये टूर्नामेंट जो है इसमें बहुत कुछ होना बाकी है. And there are multiple scenarios by which Pakistan can actually make it to the semi-finals. याद रहे कि टॉप 4 टीमें जो हैं वो semi-finals खेलेंगी. That's how it is. Now let's get on to the business. Well, let me just start with Wasim. Yesterday it was another fantastic show by India, but what a great innings by Virat Kohli. It's so sad he couldn't get that century. I know he was trying, but unfortunately it wasn't meant to be. But overall complete performance. और आपने बड़ा अच्छा कहा कि उनकी bowling जितना वो खेल रहे हैं और पोटेंट लग रही है. जिसको भी खिलाते हैं, आप शामी खिलाया वो 5 आउट कर गया आके. सो दैट्स हाउ स्क्वाड में आपके जो प्लेयर होने चाहिए वो होने चाहिए जो स्ट्रेट अवे जगह ले सकें कोई इंजरी हो तो. सो दैट्स व्हाई दिस टीम हैज़ बीन सो गुड. सो वेल डन टू इंडिया एंड ऑफ कोर्स विराट कोहली. राइटली सेड दैट रोहित शर्मा was the one when he came out to bat, उसने things ease out कर दी थी. The way he played, the shots he played, it was unbelievable innings from the skipper himself as well. Yes, talking about the skipper, I mean Rohit is leading by example. मिसबा वो आते हैं और आते साथ ही जो है वो opposition के ऊपर धावा बोल देते हैं. He sets up the tone so well for the rest of the batting to follow. बिल्कुल. एक तो वो मोमेंटम देते हैं ऊपर से, और कल भी हमने बात की कि बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की. हेनरी और बोल्ट बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन उन पे ऐसा उन्होंने प्रेशर डाला है, और अच्छी बॉल के बाद अचानक निकल के जो तीसरी बॉल पे छक्का मारा उसको, एंड दैट्स बेसिकली सेट द होल टोन. और बिल्कुल जो है एकदम से प्रेशर ऑफ हुआ. अच्छी बॉलिंग करके भी उनके मेन बॉलर को 5 ओवरों में 33 रन हुए हुए थे. शेल में नहीं जाते बल्कि प्रेशर वापस डालते हैं, लेंथ्स को ऑल्टर करना पड़ता है बॉलर्स को.
एंड देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अदर बैट्समैन। उनके साथ गिल भी उसी तरह कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं बॉलिंग पे। ये नहीं कहते कि वेट करें हमें बुरा बॉल मिलेगा तो हम अटैक करेंगे, बल्कि बॉलर्स पे अटैक करके उसको चेंज करते हैं सारी उसकी स्ट्रेटजी को। मोइन, हाउ इज इट दैट दे आर सक्सेसफुल इन डूइंग दिस कि जब बॉलर अच्छी बॉल को भी वो जाकर मार देते हैं, हिट मार देते हैं और स्कोर करते हैं, जिस तरह मिसबा ने कहा कि बॉलिंग पे प्रेशर डाल देते हैं, व्हाई नॉट अदर बैटर्स? आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स कि आप सोच के आते हैं कि मेरा ये प्लान है, उसको मैंने एग्जीक्यूट करना है जाके। तो नेचुरली जो अच्छे बॉलर्स होते हैं उनको आपको डोमिनेट करना होता है, आपको काउंटर अटैक करना होता है, यू नो, जस्ट टू गेन द मोमेंटम फॉर द अदर्स जो ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, प्लान सबके होते हैं, उसको अप्लाई करना पड़ता है जाके। हम बहुत सी टीमों की देख रहे हैं बॉडी लैंग्वेजेस आके एक अपना एक स्टाइल है खेलने का, नो फर्स्ट 10 ओवर्स में बिल्कुल यूटिलाइज नहीं करते, बैट बॉल्स को भी कन्वर्ट नहीं करते इवन बाउंड्रीज के अंदर। दे डिपेंड कि विकेट ना गिरे और हम आराम से 30-40 रन बनाएं। बट यहाँ पे टोटल ऑपोजिट है इंडिया का। इंडिया के थ्रू आउट हमने देखा अभी तक जो मैचेस हुए हैं 5, उसमें टोटली आके अटैक करते हैं और वाइल्ड चेजिंग ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं ताकि आप ऊपर से ही डोमिनेट करें, क्योंकि नीचे वाले आने वाले बैट्समैनों के लिए फिर बहुत ही ईजी प्लेटफॉर्म हो जाता है। और अभी तक इसी वजह से सक्सेसफुल रहे बिकॉज क्लैरिटी है उनके माइंड में। Yeah, clarity is the key word there. The strategy is very clear. Shoaib, आपने बड़ा वाज़े तौर पे right from the beginning कुलदीप यादव को कि attack him, come down the wicket, attack him. और कल न्यूजीलैंड बल्लेबाजों ने after steadying the innings, they did exactly that, and Kuldeep was very, very expensive. Yeah, because you know as a batter आपने बॉलर को ये डालना है कि नहीं, I'm gonna come after you, so bring on your best. तो आप इस तरह जब आप चैलेंज लेते हैं तो उससे ये होता है कि आप जो है आप पूरे रेडी हैं हर तरफ खेलने के लिए, और जो उसका ए प्लान है उसको पहले फेल करना है, फिर उसका बी प्लान है जो स्पिनर यूजुअली शॉर्ट ऑफ लेंथ जाता है जब आप उसे डाउन द ग्राउंड खेलते हैं, या वो आउटसाइड ऑफ स्टंप जाता है या आपकी टांगों पे बॉल कराना शुरू कर देता है। तो एग्जीक्यूशन अगेंस्ट कुलदीप स्पेशली फ्रॉम मिचेल वो बहुत अच्छी थी। और आई गेस ये बाकी बैटर्स भी जो हैं उनके अगेंस्ट अगर यही करेंगे, इनफैक्ट सारे स्पिनर्स के अगेंस्ट अगर इस तरह करेंगे। सेंटनर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन सेंटनर को मैं जितना खेला हूँ उसमें मैंने कोशिश हमेशा यही की कि जितना आप उनको बैक फुट पे मैनेज करें। बैक फुट पे इसलिए मैनेज करें कि वो हाइट से ज़रा लूप से बॉल करते हैं। हाँ, एक वो स्लाइडर करते हैं, लेकिन वो भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं, बट मेक श्योर योर लेग्स शुड नॉट कम इन फ्रंट ऑफ द स्टम्प्स। और स्पिनर को आपने कभी भी सेटल नहीं होने देना। इसीलिए जो ये रोहित करते हैं वो पेसर्स को सेट नहीं होने देते, कि जो 6 to 8 मीटर जो वसीम भाई बात करते हैं वो वहाँ बॉलिंग नहीं करने देते। अगर आप उनको 2 बॉलें करें तो जैसे मिसबा भाई ने कहा कि वो ऐसा शॉट खेलते हैं कि वो ख़त्म कर देते हैं। और जब इंडियन बैटर्स जो हैं जब आते हैं वो, तो दूसरी टीम वाले ना ये सोच रहे होते हैं, हुई वो आ गया, हुई अभी उसने भी आना है, हुई। एक चीज़ जो हम हमेशा बात करते हैं, जो पाकिस्तान का भी मैच था कि शाहीन को फाइन लेग और स्क्वायर लेग, मलिक ने भी बात की थी, रोहित शर्मा पे ये फील्डर इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिकअप शॉट खेलते हैं, आप उनको आगे करते हैं तो सामने ऊंचा मारते हैं, फिर लेंथ अगर पुल करते हैं तो ये लेग साइड पे सारा एरिया खुल जाता है। बोल्ड को अगर देखें तो पहले ओवर से उन्होंने ये दोनों फील्डर पीछे किए हुए थे, बट रोहित शर्मा के पास उसका भी जवाब था। उसने वो शॉट नहीं खेली, फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, डाउन द ग्राउंड मारी एक शॉट, एंड देन ही बेसिकली स्टेड लेग साइड खड़े होकर सारे शॉट ऑफ साइड पे खेले। तो ये हर बैट्समैन को आप जाके मैच के अंदर सीधा नहीं कर सकते, मतलब आप कहेंगे मैच में जाके मैं सारी चीज़ें करूँगा। तो देखें ये उन्होंने पहले एक आधा बॉल किया, उसके बाद उन्होंने चेंज किया, क्रिएटेड इज ओन, ये पीछे कर रहे थे और ये कैच इनका ड्रॉप हुआ था पहला, कैरी नहीं हुआ। ये शॉट देखेंगे, ये थर्ड मैन ऊपर है और उधर पीछे, फिर फाइन लेग ऊपर आया तो उन्होंने ये शॉट खेला। वाओ, इट्स ऑल अबाउट बेसिकली प्रैक्टिस एंड कॉन्फिडेंस। टोटल प्लान चेंज किया है। एंड ऑफ कोर्स रीडिंग द सिचुएशन इज सो इम्पॉर्टेंट। वो जो हम कहते हैं गेम अवेयरनेस क्या होनी चाहिए, किस तरीके से उसने 2 बॉलें रोकी, वो शोएब ने भी एक्सप्लेन किया, आपने भी किया कि वो 6 to 8 मीटर जो लेंथ करते हैं वो उसको तंग करती है, तो उसने कहा चलो प्लान बी निकल के दो। तो वसीम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास ये सारी ऑप्शंस रेडी होनी चाहिए पहले से। यू नो यार मेरी ये शॉट है, ये है, अच्छा अगर ये फील्ड आ जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, और आप वो सारी चीज़ें पहले
इम्प्लीमेंट कर चुके होते हैं मैचेस में, यू आर कॉन्फिडेंट कि कोई भी बॉलर आएगा ना, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, अगर आप वो नहीं कर रहे, अपने कंफर्ट जोन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सडनली मैच में आपका वो प्लान ए जो हमेशा हम बात करते हैं उसको काउंटर कर लेते हैं, न्यूजीलैंडर बहुत अच्छा करते हैं, फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन होनी चाहिए या तीसरी ऑप्शन होनी चाहिए, जो कि कल रोहित ने बताया कि नहीं, सिर्फ वो शॉटें नहीं है, अगर यहाँ फील्डर रखोगे तो फिर मैं इधर मारूंगा, सामने मारूंगा और एक्स्ट्रा कवर पे मारूंगा। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आप दिलेर होने चाहिए। जब आप ब्रेव हो तो फिर आपके सारी प्लान्स, इवन लक जो है वो अभी फेवर करना शुरू हो जाती है। एग्जैक्ट वर्ड्स में क्या मतलब है? उसमें ये है वसीम भाई कि ये नहीं, फेलियर से नहीं घबराना चाहिए। वो जब आप फेलियर, हाँ, क्लैरिटी आप अपने आप को दें, आप दूसरे से मांग रहे हैं, पहले आप अपने आप को तो दें क्लैरिटी। अगर आप अपने आप को क्लैरिटी देते हैं, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। Alright जी, क्लैरिटी का मामला है, and I'm very clear because my producer is telling me it's time to take a break right here on the Pavilion. But when we come back, we're getting closer to the Pakistan-Afghanistan game. We'll talk about that. Don't go away. Keep watching. Sports, 10 Sports and the ARY's app. Hello and welcome to the Pavilion. मैं हूं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं Sports and the ARY's app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. And today we have a game for Pakistan. It's Pakistan versus Afghanistan. इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे। Pavilion में मेरे साथ मौजूद शोएब मलिक, मिसबाहुल हक, मोइन खान and वसीम अकरम। सबसे पहले जेंटलमैन, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये पिछले 1-2 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ जगहों पे ये एक बात बड़े ज़ोर और शोर के साथ सर्कुलेट कर रही थी कि पाकिस्तान टीम के कैंप के अंदर कोई आपस में इख्तलाफात हो गए हैं या लड़ाई हो गई है या कोई बदमज़गी हुई है। हमने रब्ता किया रिलायबल सोर्सेज से पाकिस्तान टीम के हवाले से और इसके ऊपर बाकायदा हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया इस मामले को, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि टीम जो है वो बहुत डिसअपॉइंटेड है कि इस किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं। उनको बहुत दुख हुआ है ये सब कुछ सुन के, और उन्होंने शिकवा किया है इसका। तो मैं सबको, तमाम लोगों को उन्होंने डिनाई किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। द टीम इज़ यूनाइटेड, दे आर रेडी टू प्ले देयर गेम्स, दे आर स्टिल इन दिस वर्ल्ड कप, इट्स नॉट ओवर येट, एंड दे आर ऑलरेडी प्लेइंग इन इंडिया विदाउट पाकिस्तानी फैंस इन द स्टेडियम। सो दे फील कि अगर बैक होम से उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी तो दैट्स नॉट नाइस। सेकेंडली, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज मोस्ट वेलकम, एंड आवर 4 legends here have always been very constructive about their analysis and critical analysis, but इस किस्म की अफवाहें फैलाना ये जो है ये खाम-खामे टीम के लिए जो है इस वक्त मोरल के लिए बहुत बुरा है। सो हम पाकिस्तान टीम को ये बताना चाहते हैं that guys stay strong. Yes, we will do the critical analysis here as we go along the games. However, we are with you, behind you 100%, no matter what. And with that, let me now bring this to you, Wasim. Yes. How bad can this be when you have media, irresponsible media reporting that can cause friction between players? यानी कि अगर कोई झगड़ा नहीं भी है तो players के बीच में friction पैदा कर दी जाए। Yeah, that's a feeling that I can't explain because हमारे दौर में social media था नहीं, so इतने पता नहीं था लगता हमें चीज़ों का। न्यूज़पेपर होता था बाहर के मुल्कों में, वो स्पोर्ट्स सफ़ा पढ़ लिया तो पढ़ लिया, but in general nowadays everything is on the phone, so please try to avoid spreading fake news. It's not fair on the team, and rightly so आपने कहा कि the whole country is behind them. Just fight till the last ball and be brave. You know, very interestingly, Wasim, fake news की हम बात कर रहे हैं. If you remember, recall, शुरू में मेरा ख्याल है कोई जो मैच, जब मैचेस चल रहे थे तो इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया वाले इंडिया वाली गेम के बाद आपकी तस्वीर के साथ किसी ने आपका एक पूरा कोड बनाकर पूरे हर जगह व्हाट्सएप के ऊपर कर दिया था। एशिया कप के दौरान भी हुआ था, अभी दोबारा हुआ है ये इंडिया वाले पाकिस्तान वाले मैच के बाद। Because एने वेले लोग, एने फारिग लोग ने, so their life is कि भाई उसका कोट उठा के इधर झूठ बोल दो। That's not journalism at all. No, not. Well, that journalism means go जहाँ भी जाना है खुद जाओ, investigate it, find the truth, investigate it, report the truth. मैच पे भी रिपोर्ट करनी है, मैच पे जाके करो। टीवी पे बैठ के रिपोर्ट करना तो वो कोई भी कर सकता है, वो तो मेरी 9 साल की बच्ची भी कर सकती है। All right. With that, now let's get to the other, the real part of the game, right? Yes. Which is the game itself. Let's talk about Afghanistan, Pakistan. अभी तक अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से कोई भी ODI नहीं जीता, और जो पिछला वर्ल्ड कप था 2019 में जो एक टाकरा हुआ था, वो मैच काफी फंस गया था। You were there, you were commentating. Yeah, Wahab Riaz and Imad Wasim. Imad Wasim got runs. He 49 something. Crucial stage पे फिर वहाब आया था टूटी उंगली के साथ,
and then he played a gem of an innings, a little cameo innings where Pakistan won the game. 46 रन आखिरी 5 ओवरों में चाहिए थे पाकिस्तान को उस गेम के अंदर. We finished that with 2 balls to go. But वो गेम बहुत क्लोज थी. In fact, with Misbah, Wasim, both of you, interestingly, Afghanistan has been making close games with Pakistan lately. Even in Asia Cup, we've had some close games. Yeah, we did, but still, we won 7 out of 7 जो उनसे हम खेले हैं. I know there are a lot of talk कि चेन्नई में मैच है, उसी पिच पे मैच है. It is what it is. Yeah. अब वो है तो है, उसमें कोई कहने से एक्स पे जाने से या वाई पे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना. पाकिस्तान टीम आर द फेवरेट्स टुडे. इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम फॉर देम एज लॉन्ग एज हम यही कहते आ रहे हैं कि प्ले विद सम दलेरी, ताकि पता हो कि पाकिस्तान की टीम है. अगर हमने ऐसी एट दैट लेवल हो के दे क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप, कंग्रेचुलेशन टू अफगानिस्तान. तो पाकिस्तान टीम अगर प्लेयर टू प्लेयर देखा जाए तो हमारी टीम में बहुत टैलेंट है और देयर शुडंट बी अ प्रॉब्लम टुडे. ऑफ कोर्स कॉशियस रहना पड़ेगा. डिसीजन क्या करते हैं पिच का हमें पता नहीं. वी सीन द पिच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाले मैच पे देखी थी, मगर उस गेम को भी हफ्ता हो गया. सो माइट हैव मे बी अ डिफरेंट पिच ऑलटुगेदर, इंप्रूव होगी हो. जी बिल्कुल. ये एक मैच फीचर है हमारा अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान. लेट्स टेक अ लुक. राइट मोइन, बड़ी इंटरेस्टिंग. रिजवान ने कहा कि हमें पता है कि हम बड़ी एवरेज परफॉर्मेंस देते आए हैं अभी तक, और फील्डिंग के ऊपर उन्होंने जो है खुद ही एडमिट किया है कि फील्डिंग के अंदर जो है बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं. बट ओवरऑल मेरा ख्याल है वो जो एवरेज परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं उसी की जो वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं. देखिए पाकिस्तान की अभी तक जो भी परफॉर्मेंस रही बाकी वो एवरेज तो है, बट यहाँ पे एक मौका मिला है पाकिस्तान को कम बैक करने का. कंपैरेटिवली एक हल्की ऑपोजिशन के साथ आप खेले जा रहे. आई होप कि आज टॉस जीते और पाकिस्तान पहले बैटिंग करे, बिकॉज अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी वाइल चेजिंग तो देयर इज़ अ गुड चांस ऑफ पाकिस्तान विनिंग द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट और एक अच्छा टोटल लगाने की कोशिश करें. एनीथिंग अबव 250 पाकिस्तान मैच जीत सकता है इनसे, बिकॉज चेजिंग में कोई भी अच्छा नहीं है इनमें. गुरबाज नो डाउट बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी एक पिछले मैच में, उन्होंने 80 रन्स की, लेकिन उसके अलावा कोई भी छोटी इनिंग्स को बड़ी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, स्पेशली मिडिल ऑर्डर के अंदर. तो यहाँ पे कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो बेहतर चांस है पाकिस्तान का अफगानिस्तान के खिलाफ कि यहाँ से एक मोमेंटम कम से कम गेन कर सकते हैं और आगे मैचेस के लिए एक और अच्छी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं अपनी. So Shoaib, Jonathan Trott has really definitely injected some new blood into the Afghanistan side. बड़े confident भी लग रहे थे. उन्होंने कहा we like being underdogs, but हमने 20 ओवर की सीरीज में हराया भी हुआ है पाकिस्तान को, तो maybe we could repeat that performance again. How does Jonathan Trott influence this Afghanistan team? I think if we look at Afghanistan overall performance, it's getting better, but still they're not there in ODI cricket. Right. उनको जो batters हैं, especially the day Gurbaz, he scores runs, then they get to a good target where they can defend or to if they are chasing. Yeah. लेकिन उसके अलावा I guess अगर आप उनके 2 spinners को अच्छे से खेल लें, then they're not winning against you. राइट. उस पर वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. एक है मुजीब हैं, एक है राशिद, तो उनको आपको टैकल करना है. बट नो डाउट जॉनथन ट्रॉट ब्रॉट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन अफगानिस्तान टीम, एंड उसने सेल्फ बिलीव दिया है कि नहीं, वी कैन अचीव, वी कैन डू बेटर इन ODI क्रिकेट एज वेल. और वो हम लोगों ने देखा है कि जैसे वो इंग्लैंड से जीते हैं. हाँ, उस दिन ये था कि थैंक्स टू इंग्लैंड, उन्होंने टॉस जीत के पहले उनको बैटिंग करवा दी और उस दिन स्पिन भी शुरू हो गया उस पिच पे जहाँ पे 400 रन बन रहे थे. उस पिच पे स्पिन भी शुरू हो गया. बट आई गेस पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फेवरेट्स हैं आज, और उनको ये मैच आराम से जीतना चाहिए. राइट ऑन जी. पाकिस्तान आर द फेवरेट्स और शोएब अली कह रहे हैं कि आराम से पाकिस्तान को जीतना चाहिए. वील फाइंड आउट एट द एंड ऑफ द डे, बट राइट नाउ इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक. वील सी यू ऑन द अदर साइड. कीप वाचिंग Pavilion on Sports and Sports and the Airways app. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and Sports and the Airways app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup. Today it's Pakistan versus Afghanistan. ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे इस मैच के हवाले से. मिसबा, let me bring this to you. Looks like that the Afghanistan openers or the top order have more firepower than Pakistan right now. Is that an advantage for Afghanistan? दोनों प्लेयर बड़े इंपॉर्टेंट है, रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान. प्रीवियसली अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इनका रिकॉर्ड अच्छा है. 300 किया है, तो इन दोनों ने रन्स किया और बहुत बड़ी पार्टनरशिप की हुई है इन्होंने. बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है अफगानिस्तान इन पे, क्योंकि इनकी टेक्निकली भी बहुत बेहतर है
हर किस्म की बॉलिंग को ये अच्छा खेलते हैं। पहले अगर देखें और बाकी बैट्समैनों को देखें, अफगानिस्तान के तो शॉर्ट बॉल और पेस पे थोड़ा सा घबराते थे, आउट होते थे। ये दोनों ऐसे हैं कि जो बाउंसर्स को छोड़ते भी हैं। गुरबाज बहुत स्ट्रॉन्ग है, पुल पे अब छक्के भी मार रहे हैं वो। तो ओवरऑल इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया और इनकी बैटिंग जो है वो एक टॉप क्लास बैटिंग लाइनअप में जो बैट्समैन होते हैं वैसे हैं। देखिए क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे हैं बड़े ज़बरदस्त, बैक फुट फ्रंट फुट पे इक्वली स्ट्रॉन्ग है, इंटेंट नज़र आती है इनकी बैटिंग में। ये किसी भी क्लास बैटिंग लाइनअप में देखेंगे टॉप क्लास बैट्समैनों को ये शॉट हैं हर तरफ, यानी कि बॉल अंदर भी आ रहा है, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को भी अच्छा खेल रहे हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डोमिनेट कर रहे हैं बॉलिंग को। ये नॉर्मली ये वाले बॉल जो शॉर्ट बॉल थे पहले मुश्किल होती थी अफगानिस्तान के लिए। नाउ दे हैव शॉट्स ऑन बोथ साइड्स, पुल भी मार देते हैं, अपर कट भी मार दिया है, फिर स्पिनर्स को डोमिनेट करते हैं, स्वीप बड़ी पक्की कर लिया है उन्होंने, छक्के मारते हैं स्वीप पे। तो आई थिंक दे आर द की। इन दोनों में से कोई एक भी लंबी इनिंग जब खेलता है तो अफगानिस्तान को वो एक टारगेट नज़र आता है कि नाउ वी कैन गो बियॉन्ड 250। तो पहला ही हर्डल ये है पाकिस्तान के लिए, वी गेट देम अर्ली देन वी आर इन द गेम। इतनी सारी चीजें हैं तो फिर ਅਸੀਂ ना ही समझिए। we have a feature here on Gurbaz. Let's take a look. It's beautiful there, Wasim. Good words from Gurbaz. Very good. He's a sensible boy, and like what's his name? Najibullah said, he's angry all the time. Angry young man. Angry young man. But yeah, what a player. Have we seen his innings? We've seen his impact on Afghanistan team. He gets run, they get good total. And for Pakistan team, I think they should know कि they दो ओपनर हैं, इनमें से एक को अर्ली ऑन आउट कर लिया, and they can put the pressure back on Afghanistan team. And remember, उनकी डॉट बॉल रेशियो सबसे ज़्यादा है इस वर्ल्ड कप में. It's about 56.37% their dot balls, and that's where the problem is. ये तब होता है जब ये दोनों में से ऊपर में एक आउट हो जाए, स्पेशली गुरबाज, कुछ उसका मिसबा ने एक्सप्लेन किया कि वो ग्राउंड के चारों तरफ खेलते हैं और क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है. ही इज अ स्पेशल टैलेंट, नो डाउट. आखिरी 2 दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बड़ा लंबा फील्डिंग सेशन भी किया है, तो रोक सकते हैं. they've been working hard on that. मोइन, so ये तो हमने टॉप ऑर्डर की बात कर ली, देयर एक्सप्लोसिव, ये बात तो समझ में आ गई. गुरबाज इज की टू देयर वोटिंग. बट व्हाट अबाउट द फ्रेजिलिटी ऑफ द अफगानिस्तान मिडिल ऑर्डर? क्योंकि जब ये ऊपर से क्रैश करते हैं तो पीछे भी उनके यहाँ भी ऐसा ही हो जाता है, तितर बितर हो जाता है. तितर बितर वो इसी वजह से होता है कि देखिए बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं ओपनर्स पे, और अभी तक ओपनर्स ने रीजनेबली बेटर स्टार्ट दिया इनको. यू नो, जब विकेट्स गिरती हैं तो प्रेशर आता है, फिर उसमें जो अभी वसीम भाई ने बात की, डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा हो जाती है. उस वक्त वो कोशिश कर रहे थे कि विकेट्स ना गिरें. बट जो क्रिकेट अब बन गई है, जिस फ्लेयर में टीमें खेल रही हैं, लाइक आपको कम से कम डॉट बॉल्स को कन्वर्ट सिंगल में करें, या ऐसी बैट बॉल्स हैं उनको आप कन्वर्ट बाउंड्री में करें. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि नहीं, और अभी तक हमने नहीं देखा इस पूरे वर्ल्ड कप में कहीं भी मौका है मिडिल ऑर्डर के लिए. तो जितने भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं उसमें नबी भी एक बहुत बड़ा फेलियर है, मैं कहूँगा. बड़ा वो सॉलिड स्ट्रॉन्ग पिलर है उनकी मिडिल ऑर्डर का, उससे भी बिल्कुल बैटिंग नहीं हो रही. आई थिंक वो ये जो टेक्निकल रीजंस है ना, जो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे डॉट बॉल्स को सिंगल में या बैट बॉल को बाउंड्री में, उनका ज़रूर इशू है. लेकिन जो उन्होंने नजीबुल्लाह ज़दरान की जगह पे इकराम अली खेल जी, वो अच्छा खेल रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, और ये जो हैं उनके अजमतुल्ला उमरज़ई, ये भी अच्छा खेल रहे हैं, और मेरे ख्याल में पहले 3 बैटर्स में अफगानिस्तान से टॉप स्कोरर में भी आते हैं. ऐसी भी ना ही समझिए. नहीं, अफगानिस्तान की अगर जिक्र की जाए प्लेइंग 11 की, फॉर इंस्टेंस, देयर फास्ट बॉलिंग इज स्ट्रगलिंग, एज वी नो, बोथ ऑफ देम आर. फारूकी इज ओके विद द न्यू बॉल, देन आई थिंक एंड में उन्हें दोनों को प्रॉब्लम हो रही है, पावर प्लेयर में स्पेशली. बट अगर हम बात करें एक्स्ट्रा स्पिनर डालने की, अगर ये नूर को डालते हैं, तो अगर मैं अफगानिस्तान टीम का थिंक टैंक हूँ या कोच हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि पाकिस्तान टीम के मोस्टली बैटर्स, जैसे ये लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर जो होता है, उससे फंसते हैं, उसको रीड नहीं कर पाते हैं. नूर इज ऑल्सो अ वेरी स्पेशल टैलेंट. हम वही समझे जो इन दोनों ने कहा है. I suppose so. Okay, no, that's not how we are thinking. अच्छा वसीम, आपने ये स्पिनर्स का जिक्र कर दिया. सो आपने कहा कि इनके पेस बॉलर्स जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बट देयर इज सो मच डिपेंडेंसी ऑन अफगानिस्तान स्पिनर्स एंड दे टेंड टू डिलीवर, वेदर इट इज राशिद और नबी, they always deliver for Afghanistan.
How dangerous are they going to be for us today? Look, Rashid, we have seen in mid overs, he doesn't give anything away. He's got great variations, and if it's a turning track, he's even more lethal. Mujib loves bowling with the new ball, especially in power play. Off break भी करता है, गुगली भी करता है, कैरम बॉल भी करता है, फिर एक नया बॉल वो ऐसे करता है जो अंदर आता है सीम के साथ, so या इन स्विंग की तरह. सो अगर ये तीसरा खिलाते हैं तो वो थोड़ा तंग कर सकता है. बट दीज टू आर ऑल्सो वेरी डेयर. Nabi got an experience. I mean, he has been playing since Afghanistan cricket started. This is sharp fox. ये जरा पाकिस्तान स्ट्रगल करता है अफगानिस्तान के स्पिन के खिलाफ. एक ग्राफिक है आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आ रहे हैं, इसको जरा गौर से देखें. This is how we've been with 27 विकेटें हमने उनके स्पिन अटैक को दी हुई हैं एट एन एवरेज ऑफ 30.44 और उनकी इकोनॉमी जो है हमारे खिलाफ वो 4.29 की रही है. What do you read into that, Misbah? देखिए मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान का स्टैट देख रहे हैं क्योंकि ओवरऑल इनकी स्ट्रेंथ ही इनकी स्पिन है. आप सारी टीमों के अगेंस्ट देखेंगे तो ऐसे ही होगा. पेस उस तरीके से नहीं इफेक्टिव अभी तक इनकी जिस तरह इनकी स्पिन बॉलिंग है. तो दुनिया सारे को पता है, हमें भी पता है कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट अगर आपने अच्छा करना है तो उनके जो स्पिन ट्विंस हैं, स्पेशली मुजीब अंडर प्रेशर पहला पावर प्ले उसमें बॉल करता है, आगे प्रेशर डालता है ऊपर से उसको खेलना आपने अच्छा. और फिर इन द मिड ओवर्स राशिद खान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप नेगोशिएट करते हैं, इवन 4 रन ओवर टीम्स आर हैप्पी. 4 रन ओवर आप विकेट्स नहीं देते, देन यू कैश ऑन. जो बाकी 30 ओवर बचते हैं उनमें आप यू कैन जस्ट मेक अप विद दैट. मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ. इट्स ओपन फॉर एवरीबॉडी टू काइंड ऑफ गो एंड जस्ट अ क्विक आंसर बिकॉज़ वी गॉट टू गो इनटू अ ब्रेक. एक ज़माना होता था वसीम जी, इस बार हमें कहा जाता था कि जी सब कॉन्टिनेंट के बैट्समैन जो हैं वो स्पिन को बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं, पाकिस्तानी बल्लेबाज जो हैं वो स्पिन को बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं. बट इट सीम्स लाइक वी हैव बीन स्ट्रगलिंग विद स्पिन लेटली. इवन 90s में या हमें हमेशा स्पिनर ने मोस्टली तंग किया है. Right. आप शेन वॉन ले लें, आप कुंबले ले लें. ओके 2-3 प्लेयर हमारे बड़े अच्छे होते हैं. सईद है, इंजमाम है, इजाज. These guys were good against spin, but generally we did struggle against spin. I think it depends But because on the other hand, Indian team, not from my era as well, and this era, they have a different approach altogether against spinners. मेरे पास इसका जवाब है. क्योंकि अगर आप बैटर्स निकाल लें जो स्पिन को अच्छा खेलते थे सब कॉन्टिनेंट के, अब सब उठा के देख लें, सबको डाउन द ग्राउंड चिक्का मारना आता है. क्योंकि जब तक स्पिनर को आपको वो शॉट मारना आता वो आपको तंग ही करता रहे. That's a good point that you bring up. With that, we're going to take a break here on the Pavilion, but when we come back, there's more on the other side. Don't go away. Welcome back to the Pavilion. मैं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं Sports and the Airwise app, and we are getting ready for the Pakistan-India clash. अब ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग अफगानिस्तान की टीम के हवाले से बहुत सारे उनके पहलू जो थे उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे. अब वक्त हुआ है कि पाकिस्तान की टीम के बारे में हम बात करते हैं. बट बिफोर वी टॉक अबाउट द पाकिस्तान टीम, हमारे नंबर 1 स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब शाहिद हाशमी साहब जो कि भारत में मौजूद हैं, इंडिया में मौजूद हैं, हमने उनको एक टास्क दिया और उन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके के साथ हमारे लिए एक बहुत अहम इंटरव्यू जो है वो सिक्योर किया है. सो इट्स ओवर टू शाहिद हाशमी हु हैज़ मिकी आर्थर विद हिम. I'm Shahid Hashmi for A Sports Pakistan and be doing an exclusive interview with head coach Mickey Arthur. Mickey, welcome to the Pavilion of A Sports Show. Parched, dry wicket, oppressive heat, a must-win game. What do we expect from Pakistan? Yeah, well, we expect a really good performance today. Again, you know, when I look at our preparation, it's been outstanding. Boys have really worked hard. We've looked at a couple of things that we feel we need improving on. We've spoken about it. We've practiced it. It's now just executing it. That's the key for us. All are saying that it's a spin versus a spin contest. Do you believe in that? Yeah, look, I do, but we've seen pace do okay here. You know, we've seen pace do decently with the new ball. So yeah, spin is going to play a massive role. We do know that, and we know Afghanistan are a spin-centric team. But you know, we've just got to put together 50 good overs, whether that's with our pace or whether that's with our spin. What are the lessons learned from the last 2 defeats, especially the batting collapse? India 155 for 2 to 191 all out, and then against Australia needing 168 in the last 20 overs. Yeah, we got ourselves into a good position there against Australia, and then just fell away. I think the lessons learned is we need a batsman getting 100.
We need somebody in our top 4 getting in, getting 100, and allowing the other guys to bat around them. The tempo of our batting has been okay, and now it's just guys getting 70s. Those need to be 100s. They need to be 110s, and everybody batting around them will hopefully give us the score that we need. And how happy are you with the return of form of Shaheen Shah Afridi, 5 for 54? Yeah, he worked really hard at it. He had a little bit of sickness. He was down. There were a couple of things that we felt we needed to tweak with his bowling, and he came back and responded exceptionally well. So to get Shaheen Shah Afridi firing for us is pivotal because we know he's a genuine match winner. And finally, what is the message to the fans back home who've not been able to come and attend the matches? Yeah, we're missing you. We're really missing seeing the green in the stand. We're really missing seeing our own supporters here. But the boys, we spoke about it last night. The boys are doing it for everybody back home. And I promise you they're trying 100% to make you all very, very happy. Thank you, Mickey. Good luck. Pleasure. Thank you, Shahid bhai. Wonderful. Great job done. So, there you have it. Mickey Arthur, your thoughts? वेल आई थिंक बहुत ही जनरल बातें की, वो तमाम लोग यही बातें कर रहे हैं. उनको तरीके बताने चाहिए जिस तरह पाकिस्तान की टीम ने विकेटें लूज़ किए पिछले मैच में, तेरे करीब जाके उस मैच में बहुत ही रैश शॉट्स खेले और बुरी बॉलों पे जिनको आप कन्वर्ट कर सकते थे बड़ी बाउंड्रीज के अंदर, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं किया. ये तमाम चीज़ आई होप के बताई उन्होंने, बट उन्होंने जो भी फीडबैक दिया है टीम का, प्रिपरेशन तो हो रही थी, उन्होंने कहा जी बहुत प्रिपरेशन की है. तो आई थिंक नेशनली इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए सब प्रिपेयर्ड हो के जाते हैं, आपको वहाँ जाके प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती. बट अगेन बीइंग अ डायरेक्टर क्रिकेट आई थिंक मोटिवेट ज़रूर किया होगा उन्होंने टीम को, और जिस तरह उनकी बातों से लग रहा था. आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने अभी आइडेंटिफाई की, स्पेशली बैटिंग के अंदर इतना क्लोज जाके आप आ रहे हैं, उसको बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट करना वाकई सही कह रहे हैं, वो ज़रूरी है. और कैसे करना है वो अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना होगा बैट्समैन को. वसीम ने कहा शाहीन शाह अफरीदी जो है फॉर्म उनकी अच्छी हुई है, हमने कुछ चीज़ों के ऊपर उन पे काम किया है, एंड ही इज़ रियली रिस्पॉन्डेड वेल टू दैट. व्हाट डू यू थिंक वर द थिंग्स दैट दे हैव ट्वीक्ड इन हिम? Probably more mental than anything else. Yeah. Just give him some confidence and probably told him you are the best we have and he is the best we have. Yeah. Doesn't matter नए ओवर से नए गेंद से विकेट नहीं मिलती, you'll come back and he got wickets with the old ball the previous game. I think पिछले मैच में वसीम भाई जो डिफरेंस एक नज़र आया है, अर्ली ऑन शाहीन जैसे फुल बॉल करते रहते हैं, बड़ी जल्दी उन्होंने अपनी लेंथ को जो आप भी बात करते हैं उसको जैसे देखा कि स्विंग नहीं हो रहा, he pulled his length back. और फिर वो कंसिस्टेंटली, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस पिछले मैच में नजर आया. And we have Shaheen Shah Afridi with us. Let's listen in. Well, there you have it, Shaheen Shah Afridi, looking good and confident. Shoaib? जी ऑफ कोर्स, और जब आप 5 विकेट्स लेते हैं देन ऑफ कोर्स ऑल द कॉन्फिडेंस कम्स बैक इन यू, और वो हमने देखा भी है. व्हेनेवर ही स्ट्राइक्स अप फ्रंट, रेस्ट ऑफ द बॉलिंग अटैक फॉर पाकिस्तान वो पूरा ट्रैक पे आ जाता है. सो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है शाहीन के लिए. ये लास्ट मैच में जो उन्होंने विकेट्स लिए, ये मैक्सवेल का विकेट था, आते फर्स्ट बॉल में उन्होंने ट्राई किया, ये उनका 3rd विकेट, और रिदम में नजर आ रहे हैं. सबसे अच्छी चीज ये ना करता ये वाला तो पाकिस्तान उन्होंने ठीक ठाक स्कोर कर जाना था जी, 400 हो जाने थे. Well done to Shaheen Afridi, got 5 and that's a big deal. That's a big deal. That's getting a 5 in one-day cricket, and that too in a World Cup. Yeah. Massive deal. Yeah, totally. But very, very good. We're looking forward to a great performance by not just Shaheen, but everybody else. But right now, you know, your favorite subject, Wasim, and that's the pitch. So we're going to take you over to Chennai and with the pitch report brought to you by Onik. Chennai, slowest of them all. What does that mean, Wasim? It means slowest of them all. जितनी भी pitches हैं I suppose उसका मतलब है pitch report से clarity नहीं मिल सकती, मिल सकी हमें again. But if you look at the pitch, it looks much better look wise. जो अफगानिस्तान, जो ऑस्ट्रेलिया का मैच इंडिया से हुआ था, apparently it's the same pitch. I'm not sure if it is or not, but that's what the बहुत बेहतर है. उसमें जितने क्रैक्स खुले हुए थे, बहुत ज़्यादा ड्राई था, रोल अच्छा किया हुआ है, and it also appears it'll be a slow return भी होगा, तो शायद स्लो होगा. बट अगेन उस पिच में जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच था और इस पिच में जो क्रैक्स की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत छोटे क्रैक्स हैं, बहुत ज़्यादा है. तो जब इतने छोटे क्रैक्स हों और
हीट हो, हॉट वेदर हो, अगर वो थोड़े से भी स्पाइक से भी खुलने शुरू हुए तो टर्न जो है वो हो सकता है, बट स्लोअर साइड पे होगा। लेकिन आई गेस अगर हम पूरे कॉम्बिनेशन देखें, कंपैरिजन करें, पिच को साइड पे करें, पाकिस्तान को पहले बैटिंग करें, दूसरी बैटिंग करें, ये मैच जीतना चाहिए। Yeah, there's no question about it. And also, by the way, it's not just Pakistan that has to play on this pitch. The other side is also playing on the same pitch. So it's a even contest. टॉस जैसे आपके हाथ में नहीं है, कंडीशंस भी आपके हाथ में नहीं है। उठती उठती खबर आई है अभी, किसी की फाख्ता होती है, किसी की बकरी होती है, मेरा खोता है। लेकिन वो मेक श्योर करना जागदा है। सबकी सोर्सेज की ऐसी की तैसी फेर दी आपने। अगलों ने अपनी सोर्सेज को दिया में चील, फाख्ता, कबूतर, आपने कह दिया मेरा खोता होता है। की कहते हैं फाख्ता चिड़िया तो इसलिए होती है ना कि वो उड़ के आगे बता देते हैं। मेरा यूनिकॉर्न खोता है। अच्छा चलो, दसो फिर की कहते हैं भाई रोड ही आना मेरा। नहीं उड़ के आंदा है, यूनिकॉर्न आना है। You've been on this morning, my friend. Unicorn खोता, what's going on here? शायद नूर को खिलाएं, खबर आई है। वसीम भाई तुसी इधर हो या उधर हो? नहीं, आज वसीम भाई के नाम लिख लें अफगानिस्तान। We're going to take a break in the pavilion because we're getting delirious. See you on the other side. Welcome back to the pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and the Airwise app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. चेन्नई में पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान है और मेरे साथ इस वक्त pavilion में मौजूद I've got Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Moin Khan and Wasim Akram. Wasim, Moin, I have something special for you. Sure, and something very special for all our viewers. A very special memory in Chennai, and Shahid Hashmi Saab has a little package for us. ये वो वॉल पेंटिंग है जो हमें जनवरी 1999 टेस्ट मैच की याद दिलाती है। चेन्नई टेस्ट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जबरदस्त पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की 12 रन से। पाकिस्तान की तरफ से पहली इनिंग्स में 5 विकेटें सकलैन मुश्ताक, जबरदस्त ग्रिटी 50 एवर हार्ड वर्किंग मोइन खान की और वसीम अकरम, द ग्रेट वसीम अकरम की क़यादत पाकिस्तान क्या टेस्ट मैच जीता था। 271 का टारगेट इंडिया को मिला था और सचिन तेंदुलकर ले गए थे ऑलमोस्ट टेस्ट मैच, और 271 का टारगेट देने के लिए शाहिद आफरीदी ने 141 जबरदस्त 141 बनाए थे। और फिर जब तेंदुलकर अच्छी बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार जाएगा, लेकिन सकलैन मुश्ताक ने एक बहुत जबरदस्त गेंद की और मिड ऑफ पर एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ के बीच में वसीम अकरम ने एक जबरदस्त कैच लिया और पाकिस्तान 12 रन से ये टेस्ट मैच जीत गया। स्टैंडिंग ओवेशन मिला था पाकिस्तान को, पूरा चेन्नई क्राउड ने खड़े होकर पाकिस्तान के लिए तालियां बजाई, स्टैंडिंग ओवेशन दिया। तो जबरदस्त टेस्ट मैच था। इसकी याद चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में लगाई गई है वॉल पेंटिंग। वेल डिजर्व यू ग्रेट वसीम अकरम। Thank you, Shahid bhai. Yes, Wasim Akram. You definitely deserve that credit. Thank you for bringing Shahid. Good, nicely done. And that was one of the most memorable test matches I participated in as a player or as a captain. One of the best tours I was on. That was India '99, and the closest game I played. इसकी मैच समरी भी है हमारे पास, आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं। Let's take a look at this match summary. अफरीदी को ओपन कराई थी। Yeah, that's the first innings. Pakistan. मोइन खान को भी रन करना से। मोहम्मद यूसुफ 53. कुंबले ने जो है 6 विकेटें ली थी, श्रीनाथ ने 3 विकेटें ली थी। फिर इंडिया ने जवाब में गंगोली put up a 54, Dravid the wall put up 53, and then Saklan Mushtaq there with 5 wickets and Shahid Afridi with 3 wickets. So लीड थी 16 रन की। सचिन ने बॉलिंग नहीं की थी इसमें। नहीं, मतलब मैं आउट हो जाना। This is the second innings. Guys, look at the second innings. So Shahid Afridi put up that amazing that century, 141, and Inzi with that half century, and Prasad picking up those 6 wickets, and Tendulkar picked up 2 wickets for 35. जो आप पूछ रहे थे अभी शोएब। Sachin Tendulkar then responded with that outstanding century, and he almost took this game away, but it was Saklan Mushtaq and then Wasim bhai, look at you, you were there to make this happen. You led the team from the front. Pakistan won that by 12 runs. But the most special thing here that I'd like to say is that, of course, your services to the game of cricket were fantastic. But the Chennai crowd that day, they gave you guys a standing ovation, and you took a lap of victory. Yeah, we did actually. That was one of the best days. Some odd reason, I think Javed bhai and Moin कहते हैं कि यार एक चक्कर लगा लेते हैं because crowd was chanting our names.
And we said, sure. So we did a lap. We got a standing ovation and one of the best crowds. I mean, India में generally crowd is very good. Cricket-loving crowd है, sports का पता है. Calcutta में भी, जहाँ भी हम खेले, हमें तो बड़ी ज़बरदस्त वो मिली है. You know, मेहमान नवाजी किया उन्होंने. और this tour was very special. We had a presidential kind of security. Whenever we traveled out of the hotel to the practice or to the ground or wherever we went, वो साइडों वाली रोडें बंद थी, proper escort. But we got looked after beautifully on and off the field by everyone. So very one of the best tours I've been on. I mean, I've played 100+ test matches. वैसे भी जो बहुत सारे लोग हैं जिस होटल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम रुकती है वो हमेशा भरा हुआ होता है just to see Pakistani players. So we always get lot of love from there. Yeah, that's भाई 16 रन्स मुझे ज्यादा मैं देख रहा था 16 रन थे 20 रन 20 थे या 16 थे जब सचिन तेंदुलकर I think 20, roughly about 20 if I'm not mistaken. It was a long time ago. Sachin was batting on 136 and by the time Saklan को वो काफ़ी खेल चुका था उस मैच पहले ही मैच था पाकिस्तान ने पहली विकेट में I think पहले इनिंग में 5 आउट किए थे 10 किए थे सकैन ने So I remember 136 पे खेल रहा था इसने सकलैन को अब दूसरे को ये क्या करता था इसने ये स्वीप मारनी शुरू कर दी थी ये वाली नहीं ये पीछे को अब लिटरली कीपर के पीछे फील्डर हमने रखा था मगर वो ऐसे करता था सचिन थोड़ा बार मार देता था तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था एंड देन ही स्टार्टेड हिटिंग 1-2 उसको पता लग गया कि 4-5-6 आउट हो गए हैं 4 विकेटें रह गई हैं तो स्टार्टेड हिटिंग He had a back spasm before the test match. We knew और गर्मी बड़ी है चेन्नई में as you know and it was a typical Chennai track वो लाल मिट्टी वाला grassless no grass. इस मैच में एक मजेदार वाकया ये भी है मैंने कैच पकड़ा था सौरव गंगोली का ये वाकया था कि आपने कैच पकड़ा था ये जी हाँ वाकया ही था टप्पे लगे सर 36 टप्पे 2 टप्पे लगे थे जमीन पे और मैंने कैच किया था आई डिडंट नो कि वो जमीन पे लगी है सकलैन की बॉल पे सिली पे अजहर महमूद खड़ा हुआ था ये बैकफुट पे आया आगे ठीक जोरदार पंच मारा है तो मुझे ऐसा लगा वो डायरेक्ट उसके पैड पे लगी है एंड देन हवा में बॉल गया मैंने उसको डाइव करके कैच पकड़ा है आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि कैच हो गया मैंने उठ के बड़ी कॉन्फिडेंटली हाँ छलांग मारी अपील की और उस वक्त स्टीव डन अंपायर थे स्टीव डन अंपायर को भी नहीं पता चला किसी को नहीं पता चला कि 2 टप्पे लगे हैं यू नो एंड ही वेंट टू द लेग अंपायर उससे थोड़ा कंसल्ट किया वापस आया अपनी जगह पे आके आउट दिया वो गंगोली को जो गुस्सा था वो आज तक याद है और बहुत दफ़ा सोशल मीडिया पे डिस्कस भी हुआ है कि मोइन खान ने चीटिंग की है सीरियसली मुझे बिल्कुल नहीं पता चला था अगर पता चलता तो भी शायद मैं अपील ही करता ये मैं इसी पे आ रहा था आपको दी आ गए अपील ही करनी थी वेरी गुड ये नॉटी बॉय वो जो आपने क्लैरिफाई कर दिया ना सो 20 रन रह गए थे टेस्ट मैच था अब वो जो फेमस मेरे 2-3 वर्ड्स अभी भी कभी चलते हैं मैंने यही कहा था क्विकली कि 1 विकेट चाहिए पार्टनरशिप भी लग सकती है बट गिरना नहीं मैंने कहा अब वो सारे फील्डर बाउंड्री पे थे सचिन को हमने सिंगल देना था बिकॉज वो छिक्के हुआ आ गया था और मैं सिर्फ एक्स्ट्रा कवर में पीछे खड़ा था ताकि सिंगल हो जाए बाकी हर 9 फील्डर मैं और कीपर ये था अंदर पीछे स्टंप्स के और मैं हाफवे एक्स्ट्रा कवर में अब मैंने प्लान किया हम दोनों ने सकलैन बीइंग सकलैन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैंने कहा तेरा दूसरा पड़ा इसको दूसरा ज़रा ऊंचा छोड़ ऑफ स्टंप के बाहर ताकि ये तुझे मिड विकेट मारने जाए खड़ी हो जाए ऊपर रिस्क था काइंड ऑफ अ रिस्क could have been here आर या पार काइंड ऑफ थिंग रिस्क लेना जरूरी था उससे पहले छक्का मार चुका था रिस्क लेना इसलिए जरूरी था अगर रिस्क हम ना लेते तो वो आराम से सिंगल करके मैच जीत जाता तो सारे फील्डर बाउंड्री पे सकलैन बॉलर मोइन पीछे और मैं एक्स्ट्रा कवर हाफ वे अब इसने वही बॉल किया दूसरा थोड़ा ऊर्जा ऑफ स्टंप के बाद अब वो सेट था से जब ग्रेट मैन सेट हो तो उसको तो गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रहा था उसने देखा है ऑफ स्टंप के बाद इतना ऊंचा गुलता रहा उसने जोर से वो अपना नहीं जो मारता मिड विकेट शॉट मारी एज लगी है और गेंद ऊपर लाइक प्रॉपर कैच सेटलाइट तो अब मैंने देखा था बड़े कॉन्फिडेंटली कैच मैं नीचे अब मैंने सबसे पहले वो स्प्लिट सेकंड का डिसीजन होता है 40,000 पीपल सेइंग ड्रॉप इट चीखें आ रही हैं एक तो मैंने अपने आप को शट किया ना स्प्लिट सेकंड और मैंने अपने आप को सिर्फ 2 बातें कही फर्स्ट बैलेंस एंड देन आई ऑन द बॉल और मैंने कैच इफ आई रिमेंबर मैंने किया भी ऑस्ट्रेलियन स्टाइल से था मैंने कहा ऐसे करे कि
बाहर ना निकल जाए. And I took that catch and उसके बाद सकलैन ने ठक 2-3 ऊपर से आउट की, एक मैंने किया. But Good job. what a series. Good job. What a series and what a memory. And thank you to the Chennai great ground people because उन्होंने ये painting वहाँ पर रखी हुई है. That memory is still there. And with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. When we come back, we're closer to the action. Don't go away. Welcome back to the Pavilion. You're watching Air Sports and Sports and the Airwise app. We're getting closer to the game. Pakistan का मुकाबला अफगानिस्तान और इस वक्त हमारे पास एक स्पेशल फीचर है on हारिस रऊफ. Yes, Mr. 150 plus. आज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया इनका रोल अफगानिस्तान के खिलाफ मिडिल ऑर्डर के खिलाफ खास तौर पे जब ये बॉल करने आते हैं. जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली ऐसी टीम के अगेंस्ट जिसमें टॉप ऑर्डर उनका फिर भी नेगोशिएट कर लेता है थोड़ा बहुत पेस को. जैसे उनके पहले 2 बैट्समैन आउट होते हैं तो ऐसा बॉलर जो अराउंड 150 करता है और इस किस्म की बॉलिंग करता है, शॉर्ट बॉल्स इफेक्टिव हो सकती हैं. फिर जैसी पिच है वहाँ पे रिवर्स स्विंग के भी बड़े चांसेस हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि हारिस को जो प्रीवियसली हम गेम्स में जो मिसिंग मुझे नज़र आई है, ही यूज्ड टू बॉल वेरी गुड आउट स्विंगर्स विद द न्यू बॉल. राइट, वो मिसिंग है. अर्ली चेंज पे अगर ये आता है, एक तो ये बॉल 5-6 ओवर के बाद स्विंग भी नहीं होता. तो मुझे लगता है अगर आपके 6-7 ओवर गुजर जाते हैं तो देन डोंट बॉल हारिस इन द पावर प्ले बिकॉज उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन है. 10 ओवर के बाद फिर उसको अगर आप लेके आते हैं, थोड़ा अगर स्पिनर को अर्ली यूज़ कर लें, he'll be very effective. But strategy wise I can understand where you're coming from. That can happen, but he as a bowler should be able to know now that he has been playing for Pakistan for last 3 years or more probably. He should be able to bowl in any situation. He should be able to bowl in first 10 too power play. मिसबा की भी बात ठीक है. I understand that. अगर कोई स्ट्रगल करे then you have अच्छे स्पिनर्स हैं विद इन द पावर प्ले, आप ला सकते हैं शुरू में. That's besides the point. But my point is कि ये हारिस एज अ बॉलर कब सीखेगा कि पावर प्ले में बॉलिंग करनी पड़ सकती है इसको. देखिए 150 वाले जो है या 145 जिनकी एवरेज स्पीड है, वो दूसरी टीम्स में भी वुड जो है वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं. लुकी फर्गसन है, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं. वो इसलिए अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं कि जब वो एक तो शॉर्ट बॉल जो है, यही इसीलिए कैप्टन लेके आता है ना कि शॉर्ट बॉलिंग करे और बैटर्स जो हैं वो तंग हों, कोई रैश शॉट खेलें, स्पेशली जो की बैटर्स हैं सारी टीम्स में. तो उसमें लुकी फर्गसन जो है वो इसलिए सक्सेसफुल है कि वो जब पिछला बॉल करता है वो आपकी एक्सप्लॉइट करता है. अगर एक बैटर है वो आउटसाइड ऑफ स्टंप अच्छा नहीं खेलता तो वो उसको वहाँ करता है या बॉडी में करता है. ये दोनों इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि इनका जो शॉर्ट बॉल है वो जगह पे नहीं गिर रहा है. एक ये है और दूसरा लुकी फर्गसन जो है वो 6 to 8 मीटर जिस पे वसीम भाई इन्फोसाइज करते हैं, वो उस जगह विद नो रूम जो स्टम्प टू स्टम्प बॉल होता है वो करते हैं. इसलिए पेस के साथ अच्छी जगह पे बॉल करना बहुत ज़रूरी है. इसलिए मार्क वुड भी और ये भी जो है स्ट्रगल कर रहे हैं. ठीक है, स्विंग नहीं हो रहा आपका बॉल, फिर आपका सीम नहीं हो रहा, बट आपको फिर लेंथ ऐसी रखनी है कि जिसमें बैट्समैन तंग हो, जिसकी वजह से ये स्ट्रगल कर रहे हैं. और वो बात सही है कि आप स्पिनर को ट्राई कर सकते हैं पावर प्ले में. और नवाज़ हम लोगों ने देखा है, अगर 2 राइटी खेल रहे हैं तो वो T20 क्रिकेट में भी नया बॉल करता है वो. सो यूज़ हिम. आप न्यूजीलैंड को देखें, मेनली सारे मैचेस में मैंने देखा है कि वो 8th या 9th ओवर सेंटनर करने आता है. अच्छा, उसके 2, एक तो वो थोड़ा सा बैट्समैन के दिमाग में डाउट डालते हैं कि स्टिल इन पावर प्ले 9 ओवर है, अगर ये चांस लेता है 1 ओवर में विकेट का चांस है. और दूसरा अर्ली ऑन थोड़ा सा वो ये भी देखते हैं कि नया बॉल कैसे होगा, यहाँ पे किस तरह कोई बॉल सीधा रह सकता है, स्पिन हो सकता है. तो पाकिस्तान भी ऐसे कर सकता है अर्ली ऑन. और फिर थोड़ा सा एक आधे मैच में, जैसे वसीम भाई बात करें, एक आधे मैच में उसको थोड़ा कंफर्ट जोन दें आप, थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, देन ही कैन बोल एनीवेयर. 10 ओवर्स हो जाएंगे तो वैसे ही फील्डर्स जो हैं, हाँ 4 फील्डर्स जो हैं वो 30 यार्ड सर्कल के बाहर चले जाते हैं. तो इतनी पेस वाले को थोड़ी प्रोटेक्शन देनी चाहिए. ऑलराइट, विद दैट वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक राइट हियर, बट व्हेन वी कम बैक, अभी आपने बात की पाकिस्तान की स्पिन के हवाले से. देयर आर सम इश्यूज इन द स्पिन डिपार्टमेंट, वी डिस्कस दैट बट राइट आफ्टर द ब्रेक. वेलकम बैक टू द पेविलियन. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड द एयरवाइज ऐप. आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 इन इंडिया. टुडे वी आर गोइंग टू टेक यू टू चेन्नई where Pakistan is going to clash with Afghanistan.
एंड वी आर गेटिंग क्लोज टू द टॉस. पिच रिपोर्ट हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं. मेरे साथ मौजूद पेविलियन के अंदर आई हैव गॉट शोएब मलिक, मिसबाहुल हक, मोइन खान एंड वसीम अकरम. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान. पहले आप वो एडवाइस तो करते हैं पाकिस्तान टीम को आंखों की रोशनी तेज करने के लिए क्या करना चाहिए. मिसबा ने कहा मुझे टॉस नजर आ गया है. उनको पहले से हमें ब्रेक में कह रहे हैं कि टॉस हो गया. हम उधर चेक कर रहे हैं लाइव, हमारे पास फीड आ रही है. ब्रेक में दे रहा था. वही जो एडवाइस आप लोग देते हैं मैं तो वैसे ही डाल के जाए. हाँ, वो वैसे ही मिसबा की ऑलरेडी आंखें बहुत तेज हैं, आपको पता है. मैं उस पे क्या कह सकता हूं. मतलब आप गारंटी दे रहे हैं अपनी स्टेटमेंट की. मेरी तरह तुझे जांचता है. क्रिकेट से गल कर लिए फिर. प्लीज. Pakistan's spin department. Let's talk to Shoaib Malik about this. Shoaib, what do you think? Now we have Osama Mir, Nawaz, Shadab Khan. कुछ लोग कह रहे हैं कि आज शादाब को खेलना चाहिए. अब क्या उसामा को ड्रॉप करें? एक ही मैच उनको दिया है और वो भी उनको बेंगलुरु में दिया है जहाँ पे बाउंड्रियाँ छोटी थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. So I mean, what do you think? What should be happening here? सेम टीम से खेलना चाहिए मेरे ख्याल में. हाँ, एक आप आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ देख सकते हैं क्योंकि आज जो आपकी ऑपोजिशन है उनके अगेंस्ट आपके स्टैट्स भी अच्छे नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू मतलब उनका स्पिन के अगेंस्ट. तो सलमान अली आगा जो है वो अच्छा स्पिन को खेलते हैं. वो आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं. किसकी जगह? वो मुझे लगता है कि एक जो आपका बॉलर है ऑलराउंडर जो है उसको आप कम करके उसे खिला सकते हैं. देन क्योंकि इफ्तिखार देखें उसमें या वही है नवाज आता है आपका, लेकिन नवाज की आपको ज़रूरत पड़ेगी. खब्बे की चाहिए आपको. तो आप ये कर सकते हैं कि रिस्ट स्पिनर जो है उसका आप चांस ले सकते हैं अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं. राइट. तो आप वो वाला चांस ले सकते हैं. लेकिन अगर देखा जाए तो अगर आप सेम टीम के साथ जाएँ उसामा मीर को ज़रूर सेकंड चांस मिलना चाहिए. अगर आपने उसको जज करना है उस कैच की बिना पे तो दैट्स वेरी रॉन्ग थिंग टू डू. No, I don't think people are judging him on that catch. I don't think so. I've seen a lot of people they started judging. और उसको खुद भी जो उसने ट्वीट किया अगर उसने किया है एक्स जो है so नहीं करना चाहिए. Why would you do such a thing? Tweet while you're playing a World Cup? Get off social media. तो वो जरूरत नहीं है कि इनके मैनेजर्स को भी कोई अकल नहीं है मेरा ख्याल है. एक चीज थोड़ी सी सरप्राइजिंग थी. As per the clause of the central contract, they're not supposed to see or comment on the social Obviously media. they're not listening then. I think कंट्रोल करने वाला I don't know कौन है वहाँ पे करना चाहिए. वसीम भाई एक वरिंग साइन था थोड़ा सा. उसामा की जो बॉलिंग मैंने देखी हुई है जो ये बहुत ज़्यादा स्लो बॉल उसने किया. हालांकि बीइंग अ टॉल लेग स्पिनर वो नॉर्मल ही बॉल्स इन टू द पिच और उसकी वजह से उसको बाउंस भी मिलता है, स्पिन भी होता है. इवन जो साइड मैच वो जो प्रैक्टिस गेम खेला है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उसमें भी वो मार के बॉल कर रहा था. आई वॉज सो सरप्राइज कि उसने बहुत स्लो बहुत फ्लाइट बॉल करने का. लंबा बॉलर जब फ्लाइट करेगा एक तो वैसे ही बॉल ऊपर से आ रहा है फिर आप फ्लाइट करेंगे तो बैट्समैन को बहुत टाइम मिलेगा. आपने एक चीज़ देखी ये क्यों वजह होती है? ये इसलिए होती है कि जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता. और जो फील्ड प्लेसमेंट भी थी वो भी मैं उसामा के साथ बहुत खेला हूँ, मेरे अंडर बहुत खेला है. सेम क्लब से हम लोग खेलते हैं. तो आई एम श्योर जो फील्डिंग खड़ी हुई थी वार्नर की दफ़ा में वो आप भी खेले हैं उसामा के साथ. आपको पता है कि पांच ऑन साइड पे रखे हुए हैं और उसका मेन वेपन है गुगली अगेंस्ट लेफ्टी. तो आपने 4 ऑफ साइड पे दिए विद मिड ऑफ अप. तो इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस देखें जब आप किसी को लेके आ रहे हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एज अ थिंक टैंक और एज अ लीडर योर गोल शुड बी टू गिव द बेस्ट कॉन्फिडेंस टू दैट प्लेयर हु इज यू ब्रिंगिंग इन द साइड. वो बिल्कुल नहीं नज़र आया और क्लियरली इस चीज़ को उसके साथ वो किया जा सकता है. आई गेस उसको ही शुड गेट अनदर अपॉर्चुनिटी विद गिविंग द होल कॉन्फिडेंस देने का भी तरीका होता है. जब भी बैट्समैन अपना कैप्टन जिस वक्त बॉलर को बुलाता है बॉल करने के लिए आई थिंक ही शुड आस्क हिम कि तुमने क्या बॉल करनी है, क्या फील्ड लेनी है, गो हेड. थोड़ी रिस्पांसिबिलिटी जब आप ये Nawaz and all. I've heard that Nawaz got a fever. He might not play today. They'll play Shadab. Okay, so Shadab might come in. Two leg spinners. Two leg spinners. Well, thinking out of the box. Gentlemen, I'm going to interrupt because I have to take you guys live to Chennai, where we're ready for a flip brought to you by Samsung. Well, the news out of Chennai, Pakistan winning the toss and have elected to bat first. मोइन, आप यही चाहते थे कि पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करे आज टॉस जीत कर, और वही हुआ. जी बिल्कुल, दोनों टीमें चाहती थी बिकॉज के दोनों टीमों को पहले बैटिंग करना ज़रूरी इसलिए था कि अफगानिस्तान की भी बैटिंग फर्स्ट बैटिंग में बेहतर करती है. वो चेजिंग में इतने अच्छे नहीं.
आई थिंक बड़ा अच्छा फैसला है पाकिस्तान का, बट थोड़ी सी मैं बैड लक कह लें या एक जो चेंज हुई है अफगानिस्तान की टीम में, नूर अहमद आए उनको एज फोर्थ स्पिनर खिला रहे। तीनों स्पिनर पहले ऑलरेडी बहुत अच्छी बॉल कर रहे थे और उनके खिलाफ टीमें स्ट्रगल कर रही थी। पाकिस्तान ने भी स्पिन बॉलिंग पे काफ़ी स्ट्रगल किया। आई थिंक यहाँ पे नूर का एडिशन थोड़ा सा प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा पाकिस्तान के लिए, बट दे हैव टू प्ले 50 ओवर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आप 50 ओवर नहीं खेल सके, आप ऑल आउट हो गए, तो इट मीन्स कि आप खुद इनवाइट करें अगली टीम को टुवर्ड्स विनिंग द मैच। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 50 ओवर्स पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड जो स्टार्ट होगा अगेन, मुजीब जिस तरह बॉलिंग कर रहा है, थोड़ा सा इनिशियल अटैक करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ेगा ताकि बैकफुट पे जाए। All right, we've got the playing 11s in. Wasim, take us through Pakistan squad first. One kind of forced change, I suppose. That's what the captain said. Shadab is in. Nawaz is not feeling well. He's got a fever. Otherwise, Usama is getting a second chance, and rightly so. 3 pacers and, of course, openers, and then the middle order. Skipper coming at number 3. It is very good. Interesting, 2 leg spinners, two wrist spinners for Pakistan today, Misbah. How does that impact Afghanistan? ये अफगानिस्तान की टीम है, पहले take us through this. ये अफगानिस्तान ने एक स्पिनर ऐड किया है। नॉर्मली ऊपर टॉप ऑर्डर वही है, गुरबाज, इब्राहिम एंड देन रहमत, हशमत, अजमत और उनके विकेट कीपर इकराम, नबी। सो इट्स अ बिट ऑफ चेंज। एक स्पिन ऑप्शन उन्होंने बढ़ाई है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हो सकती है पाकिस्तान के फेवर में। नूर इज़ अ वेरी गुड बॉलर, अटैकिंग बॉलर, बट जो मैंने उनकी बॉलिंग देखी है, ही गिव्स यू बाउंड्री बॉल्स। तो ये उस तरह पक्के बॉलर नहीं हैं जिस तरह राशिद है या मुजीब है। आई नो, बट ये हो गया है अब। मैंने इसकी लास्ट सीरीज देखी है, एक आई थिंक फ्रेंचाइजी क्रिकेट में। ही इज बॉलिंग क्विकर नाउ। मैं अभी खेला हूँ इससे, एलपीएल में खेला हूँ। ही इज अ इम्प्रूव्ड बॉलर। पहले ऐसा होता था कि वो देता था आपको बुरे बॉल, बट या वो अच्छी फॉर्म में था जब मैं उसे एलपीएल में खेला हूँ, बट ही वाज लाइक बॉलिंग विदिन स्टंप्स। शेबी दैट वी टू स्ट्रगल अगेंस्ट द लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर लाइक वी डिड अगेंस्ट कुलदीप एशिया कप में भी, उस मैच में भी। सो आई होप दे विल बी एबल टू रीड दिस गाय। एक चीज के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। दोनों तरफ से मुझे लगता है कि स्पिन हो सकता है अटैक उनका। ये मोइन भाई ने साहब ला लिया कि किस तरह खेलना उन्हें दसना था। मोइन भाई ने पिच का हिसाब मैंने तो बताया भाई, अटैक करना पड़ेगा थोड़ा सा। बैट बॉल जो करते हैं अक्सर इनके बॉलर्स, स्पेशली अभी नूर की बात हुई है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाउंड्रीज में। अगर आप प्रेशर नहीं डालेंगे, ये बॉलिंग ऐसी है, डिफरेंट वैरायटी है। लाइक आज नूर के एडिशन से एक और बड़ा मुश्किल टास्क होगा पाकिस्तान के लिए। तो डॉट बॉल्स कम से कम होनी चाहिए। All right, thank you, Moin. With that, we're going to take a break right here. But when we come back, we are closer to the action. Don't go away. Welcome back to the Pavilion. You're watching Sports and the ARY Zap app. The news out of Chennai is Pakistan has won the toss and elected to bat first. और इसके साथ ही वक्त हुआ है एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस का, brought to you by Palmolive Natural. जी शुएब, पाकिस्तान। मोइन, पाकिस्तान। वसीम, पाकिस्तान। मिसबाह, सारे ने पार्टियां बदल ली। पाकिस्तान। किसी ने कोई पार्टी नहीं बदली। तो तुसी भी बदल ले। वहीं से शुरू किया। फैसला फाइनल। पाकिस्तान। All right, locked and loaded, and those are your expert predictions. IG, player to watch out for, brought to you by Ufone. All right, Misbah, for you, player to watch out for today. Rizwan. Wasim? I'll go for Shadab Khan. Shadab Khan. Moin? Haris Rauf. 150 plus. And Shoaib? Captain Babar Azam. Babar Azam. And those are your players to watch out for, brought to you by Ufone. इस बार पिच को मद्देनजर रखते हुए और जो बॉलिंग चेंज की है अफगानिस्तान ने बाय ब्रिंगिंग इन नूर एंड ऑल दैट, व्हाट वुड पाकिस्तान बी सेटिंग अप एज अ टारगेट मेंटली कि हम 250 270 कितना रखेंगे दिमाग में? मिनिमम 250. एनीथिंग ओवर 250 आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड टोटल ऑन दिस पिच। एवरेज अगर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग स्कोर भी देखें 247 है और इस वर्ल्ड कप में 258 है। So anything over 250, 270, 280 would be a, I think, winning score.
इट्स अ विनिंग स्कोर। आपने अभी मिसबा ने अर्लियर भी कहा कि हो सकता है कि आज अटैक अफगानिस्तान स्पिन से ही करवाए, नया गेंद जो है वो स्पिन को दोनों एंड से स्पिन के साथ दे। विल आवर टॉप ऑर्डर बी एबल टू यूटिलाइज दैट? विल दे गो आफ्टर दोस स्पिनर्स और विल दे बी कॉशियस लाइक दे हैव बीन जनरली सो फार? देखिए, दूर से जो बैठ के देखा है उससे तो यही लग रहा है कि पिच जो है वो ऐसा नहीं है कि वेयर यू गो आफ्टर द बॉलर्स, और स्पेशली हमें ये क्रेडिट नहीं लेना, टेक अवे करना चाहिए कि उनके स्पिनर्स क्वालिटी स्पिनर्स हैं। तो आप आज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो स्ट्राइक रोटेशन होगी। अगर आप स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे फिर आपको बुरे बॉल्स जो है वो मिलेंगे जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाउंड्रीज में। सो द मेन गोल शुड बी स्ट्राइक रोटेशन, दैट विल बी द की इन टुडेज गेम। Yeah, with Shadab Khan coming in, Moin, replacing Nawaz. How do you look at the middle order for Pakistan? I think एक अपॉर्चुनिटी है अगेन यहाँ पे शादाब के लिए, क्योंकि पिछले मैच पे वो ड्रॉप हुए थे, तो एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको अवेल करना चाहिए। कंपैरेटिवली जैसे मैंने बात की कि ऐसी ऑपोजिशन है जो मिडल ओवर्स में इतना अच्छा नहीं खेलती, कन्वर्ट नहीं करती अपनी बुरी बॉल्स को बाउंड्रीज के अंदर, तो वहाँ पे आपको पूरा चांस होता है। शुड बॉल विकेट टू विकेट, गुड एडिशन। एंड थोड़ी सी यहाँ पे मैं समझता हूँ कि उनको गूगली पे थोड़ा सा और फोकस करना पड़ेगा, गूगली ज़्यादा करें मैच में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अफ़गानिस्तानी बैट्समैन जो है वो बहुत अच्छा रीड करते हैं गूगली को। तो आई थिंक इट्स अ फेयर चांस फॉर हिम अगेंस्ट दिस ऑपोजिशन के यहाँ पे अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें और कोशिश करें कि यहाँ पे विकेट्स लें। जैसे मोइन भाई ने कहा, बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि लेग स्पिन कंट्रोल से नहीं गिर रहा, तो अगर गुगली जो है वो ज़्यादा करते हैं, ये राशिद जो है ये दो बॉल के साथ क्या है, ये क्या प्रैक्टिस है? क्योंकि अक्सर ये वीडियो उनके आते हैं बार बार कि ये दो बॉल्स के साथ रिस्ट स्पिन ये रोल कर रहे होते हैं। अभी भी इन्होंने दो बॉलों के साथ बॉल किया है। ये इस तरह होता है, जो बैटर्स हैं वो भी जब उनका टर्न आने वाला हो, नेक्स्ट हो, तो वो भी दो बैट्स लेके उससे जो है अपने जो आर्म्स हैं उनका फ्लो लाते हैं, ताकि ये है कि आपका जो बॉडी है वो खुल जाए। इसी तरह सेम गोज फॉर अ बॉलर जो हमने देखा राशिद जो कर रहे थे दो बॉल्स के साथ। तो शादाब जो है वो गुगली उनकी जगह पे गिर रही है, तो ब्रिंग मिड ऑफ अप, ऑफ स्पिन वाली फील्डिंग रख के अटैकिंग ऑप्शन पे जाएं और ज़्यादा गुगलीज करें, ताकि देखिए एज अ बैटर जब आपने लेग स्पिनर को खेला हो तो आपका फर्स्ट माइंड में ये आता है कि यार मिड ऑफ तो हमेशा पीछे रहेगा। नहीं, अब मोस्टली गुगलीज करें और मिड ऑफ को ऊपर लेके आएँ, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, क्योंकि आपको फॉर्म में वापस आना है। बिल्कुल, ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं बाटा जी, आगा साहब छतरी लेके खड़े हैं, अभी उन्होंने हाथ मिलाया शाहीन शाह अफरीदी से और इफ्तिखार से। छतरी लेके, छतरी वाइट छतरी लेके गए थे। वेरी गुड यार। हाँ, ये देखें छतरी के साथ, ये देखें गिविंग एंड पे ना, ये छतरी का लेबल भी लगा हुआ है अभी तक। वैसे अड्डा तो नील कपूर ठहर वो देखें दो पुराने दोस्त मिले हैं, दो पुराने दोस्त मिले। रीजन आई टेल यू व्हाई, बिकॉज इट्स वेरी हॉट एंड व्हेन यू वेयर अ शर्ट स्पेशली कमेंट्री में वो क्या आता है कि for some odd reason they don't get it कि हम एज अ टैलेंट लाइक वी लुकिंग गुड हेयर यू नो विद जैकेट, वो कहते हैं कि आपने शो ग्राउंड से करना है 1 घंटे का या 1.5 घंटे का इस तरह लाइव विद अ शर्ट ऑन विद 40 degrees. So obviously you'll have sweat patches all over and that looks gross. Yes. And I'm all for feeling कि लोगों को फील आए ग्राउंड में, बट टैलेंट को भी तो अच्छा लगना चाहिए। हम तो बिल्कुल लगते हैं जैसे चमार नहीं होते। एक्चुअली अभी जब आप लोग दुबई में एशिया कप कर रहे थे तो we could श्रीलंका में श्रीलंका में you could see some of those an hour and a half post show, pre show, post में तो इवनिंग में स्लाइटली बेटर हो जाता है, बट 2 o'clock 12:30 स्टार्ट। मैं समझा शायद वकार भाई अपना वो रंगत को प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं, आई डोंट थिंक सो। वैसे भी आज जहाँ मैच है चेन्नई श्रीलंका तो बहुत नजदीक है वहाँ से, चेन्नई एंड कोलंबो, similar kind of weather. All right, gentlemen, thank you very much, Shoaib. Thank you, Moin. Thank you, Misbah. Thank you, Wasim. Team Pakistan, best of luck. The entire nation is rooting for you, and we are right behind you. Best of luck, Babar Azam and the boys. Make us proud. Go play your hearts out. As long as we see a great game of cricket, we're all okay with that. With that, we will see you in mid innings. Keep watching A Sports, 10 Sports, and the ARY Zap app.